নমস্কাৰ সো ক্লাস 11 और আৰু এটা নতুন টপিক লৈছো প্ৰাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডৰ লগত ৰিলেটেড মিন্স ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড কনসেপ্টৰ লগত ৰিলেটেড দিস টপিক ইজ নাথিং বাট ৰিলেশনশিপ বিটুইন ইলাস্টিসিটিজ অফ ডিমান্ড একচুয়ালি প্ৰাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড একচুয়ালি দ্য প্ৰাইস ইলাস্টিসিটিজ অফ ডিমান্ড and total expenditure means মুঠ ব্যয়ৰ লগত চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ সম্পৰ্ক চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ লগত মুঠ ব্যয়ৰ সম্পৰ্ক আমি জানো কিবা এটা দ্ৰব্য যদি আমি ক্ৰয় কৰো তেতিয়ালে তাত আমাৰ খৰচ বা ব্যয় হ'বই ক্লিয়াৰ সো তেতিয়া হলে টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰৰ লগত ইলাস্টিসিটিজ অফ ডিমান্ডৰ ৰিলেশনটো কেনেকা সেই বস্তুটো লৈ পেলাই আমি ডিসকাশনটো কৰো ক্লিয়াৰ সো সেই বস্তুটো ডিসকাশন কৰিব কাৰণে মই এটা চাৰ্ট বনাই থৈছো এটো আমি ফিল আপ কৰিম ক্লিয়াৰ সো ভালকে এটা এটা স্টেপ ভালকে বুজি যাম ওকে তেতিয়ালে বলা আমি আৰম্ভ কৰো Elastic demand, inelastic demand, unitary elastic. Clear? So elastic demand or symbolic form already tumi jana ED greater than 1, inelastic or symbolic form ED less than 1, unitary ED equal 1. Clear? The question hol elastic demand ot always amuja moi short form likhisu this is price quantity total expenditure price quantity total expenditure price quantity total expenditure dor poriman mut byoy total expenditure mane t means mut byoy clear titia hole elastic moi tinta part kori loisu so this is one this is one this is one clear the question hol yat price to jodi moi loi lo kono eta commodity price suppose 2 price nothing but kiman suppose 5 okay quantity change to tumar soa 10 aru iyat tumar moi loisu 3 clear so because why price or change to soa kom ase demand or change to besi ase price or change to 3 demand or change to 7 because why it is elastic demand ami janu আর ইয়াতো তুমি এটা কাম কৰা ইনইলাস্টিকত প্ৰাইসৰ চেঞ্জ বেছি হেতু তুমি জানা প্ৰাইসৰ চেঞ্জ যদি বেছি তে প্ৰাইস 2 লিখিলো প্ৰাইসৰ চেঞ্জ অলৱেজ বেছি কিন্তু 10 লিখিলো আৰু ডিমান্ড ডেফিনেটলি চেঞ্জ টু কম হ'ব তে ডিমান্ড ইয়াত মই লিখিলো সাপোজ 6 ইউনিটস আৰু চেঞ্জ টু যদি প্ৰাইস হোৱা বাঢ়িছে ডিমান্ড কমিব হয় না নহয় সাপোজ 4 ইউনিটস ক্লিয়াৰ আৰু এফালে 10 মই ইউনিটস টু লিখা নাই 10 and 3 ক্লিয়াৰ so price or change to kiman soa price badhise no 2 to 10 8 aru demand komise so price badhise demand komise but demand or change to 2 clear gol dia price or change besi demand or change kom price badhise demand komise 2 change 8 change ya to price badhise demand komise but demand or change to besi price or change to kom clear aru unitary ki hoy unitary price to যদি তুমি 4 লোৱা তেতিয়ালে ডেফিনেটলি ইয়াত ডিমান্ড কিমান লিখিম সাপোজ ডিমান্ড ইয়াত মই লিখিলো 5 ক্লিয়াৰ প্ৰাইস টু মই কি কৰিলো প্ৰাইস টু মই ইয়াত প্ৰাইস টু ইয়াত মই 5 লিখিলো ক্লিয়াৰ তে ডিমান্ড ইয়াত মই কিমান লিখিম সাপোজ ডিমান্ড 4 লিখো clear so price soa price 4 to 5 price badhise no price badhise demand komise price increases demand decreases price decreases demand increases clear so price badhise demand komise demand badhise clear hol gol dia the question hol in that situation elastic demand ot ami jano demand or change to always besi hobo price or change to kom hobo inelastic ot price or change to besi hobo demand or change to kom hobo yat एके থাকিবো क्लियर मतलब इलास्टिक डिमांड में प्राइस का चेंज कम होगा डिमांड का चेंज ज़्यादा होगा इनइलास्टिक में प्राइस का चेंज ज़्यादा होगा डिमांड का चेंज कम होगा यूनिटरी में प्राइस डिमांड का चेंज सेम रहेगा क्लियर अभी सवाल ये है टोटल एक्सपेंडिचर के साथ प्राइस चेंज का रिलेशन कैसे आएगा देखो अभी मान लो 2 रुपया में 10 अगर खरीद रहे हो ना तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा तुम्हारा कितना
टोटल एक्सपेंडिचर होगा ₹20। 2 रुपये में 10 खरीदो और 5 रुपये में अगर 3 खरीद रहे हो ना, तो 3 अगर 5 रुपये में खरीद रहे हो तो ₹15 जाएगा तुम्हारा। क्लियर हो गया। इधर आ जाओ, 2 रुपये में 6 यूनिट खरीद रहे हो तो रुपीस कितना जाएगा? रुपीस तुम्हारा जाएगा 12। 10 रुपये में 4 खरीद रहे हो ना, 10 रुपया में 4 खरीद रहे हो मतलब 40 रुपया खर्चा होगा। क्लियर? मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्लियर? इधर क्या होगा? 4 रुपीज़ में 5 खरीद रहे हो तो 20 रुपीज़ खर्चा होगा। 20 रुपीज़ खर्चा होगा। 5 रुपीज़ में 4 खरीद रहे हो तो मतलब 20 ही खर्चा होगा। क्लियर हो गया। 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 3 15, 2 6 12, 10 4 40, 4 5 20, 5 4 20. Clear? So these are the 3 concepts: इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक। ये तीनों के साथ ही टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन आएगा। क्लियर? अभी इसमें एक चीज़ देखो, जब इलास्टिक डिमांड था कॉन्सेप्ट, इलास्टिक डिमांड कॉन्सेप्ट था तो प्राइस का चेंज कम था, डिमांड का चेंज ज़्यादा था। क्लियर? अभी हम लोग को इसके साथ इसका रिलेशन जोड़ना है, मतलब प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर का रिलेशन जोड़ना है। इधर भी प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर का रिलेशन जोड़ना है। क्लियर? इधर भी प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर का रिलेशन जोड़ना है। क्लियर हुआ? अभी इधर तुम देखो, प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर का अगर रिलेशन देखा जाए तो रिलेशन क्या आ रहा है? तुम देखो, प्राइस जब बढ़ रहा था तो टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, मतलब प्राइस जब इंक्रीज हुआ टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ। मतलब ये आया इलास्टिक डिमांड कॉन्सेप्ट में, इलास्टिक डिमांड कॉन्सेप्ट में। क्लियर? प्राइस जब बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, बट प्राइस जब घटेगा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन इन्वर्स, इन्वर्स, इन्वर्स अंडर इलास्टिक डिमांड। क्लियर? इन्वर्स रिलेशन। लेकिन इनइलास्टिक डिमांड कॉन्सेप्ट में हम लोग को पता है प्राइस का चेंज ज़्यादा, डिमांड का चेंज कम। लेकिन प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर का अगर रिलेशन तुम देखो ना तो क्या निकल रहा है? देखो, प्राइस जब बढ़ा, प्राइस जब बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, प्राइस जब घटा टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा। मतलब प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीज। मतलब प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन आया इसमें सेम डायरेक्शन का रिलेशन है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब इसमें रिलेशन आया पॉजिटिव, इसमें रिलेशन आया इन्वर्स। क्लियर? इधर तुम्हारा देखो, यूनिटरी इलास्टिक में प्राइस और डिमांड का चेंज सेम रहेगा। इसका मतलब प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन अगर देखो, प्राइस चेंज हुआ बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब इन दैट सिचुएशन प्राइस डज नॉट अफेक्ट योर टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं गिराया, कोई इन्फ्लुएंस नहीं आया। मतलब प्राइस बढ़ा तो भी टोटल एक्सपेंडिचर 20 था, प्राइस घटा तभी भी टोटल एक्सपेंडिचर 20 है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्लियर? सो नो इफेक्ट। क्लियर? तो फाइनली ये तीनों चीज़ से तुमको ये सीख मिला, इलास्टिक डिमांड कॉन्सेप्ट में डिमांड का चेंज ज़्यादा, प्राइस का चेंज कम, बट प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन इनवर्स। व्हाट इनवर्स? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। सो रिलेशन इनवर्स। बट हियर प्राइस का चेंज ज़्यादा, डिमांड का चेंज कम बिकॉज इन इलास्टिक डिमांड। इधर तुमको क्या मिला? प्राइस बढ़ा तो एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा। यूनिटरी में तुमको क्या मिला? प्राइस बढ़ा या घटा टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब प्राइस डज नॉट अफेक्ट योर टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो फाइनली तुमको इसमें ये चीज़ मिला, मतलब इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नो इफेक्ट। क्लियर? तो फाइनली टेबल से तुमको ये चीज़ सीख मिला, व्हाट इलास्टिक में रिलेशन इनवर्स,
इनइलास्टिक में रिलेशन पॉजिटिव और यूनिटरी में कोई चीज़ चेंज नहीं। मतलब पहला वाला सिचुएशन में तुमको मिला इफ ईडी ग्रेटर देन 1, मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। इफ ईडी लेस देन 1, नंबर 3 इफ ईडी इक्वल 1। क्लियर? मतलब ईडी ग्रेटर देन 1 मतलब इलास्टिक डिमांड था, उसमें प्राइस का चेंज ज़्यादा था और रिलेशन इन्वर्स मिला प्राइस के साथ। मतलब हियर क्या मिला, प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, लेकिन प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सो रिलेशन व्हाट, इन्वर्स। ओके, सो दिस सिचुएशन तुमको मिला पहला से। इसमें तुमको क्या मिला, प्राइस पॉजिटिव रिलेशन मिला था, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। प्राइस अगर घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा। मतलब इसमें तुमको रिलेशन मिला सेम डायरेक्शन और पॉजिटिव रिलेशन, ये भी लिख सकते हो, पॉजिटिव और सेम डायरेक्शन। क्लियर? ये हो गया। इसमें तुमको क्या मिला, इसमें प्राइस does not affect what, total expenditure। क्लियर? मतलब ईडी ग्रेटर देन 1 कंसेप्ट में प्राइस जब बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, प्राइस जब घटेगा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। मतलब प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन व्हाट, इन्वर्स और नेगेटिव। बट इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन पॉजिटिव। क्लियर? बट ईडी इक्वल 1 में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब डज नॉट अफेक्ट कौन, टोटल एक्सपेंडिचर, किससे, बाय प्राइस चेंजेस। क्लियर होगा? मतलब प्राइस इफेक्ट नहीं गिराएगा टोटल एक्सपेंडिचर में। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर अंडर डिफरेंट इलास्टिसिटीज। मतलब इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक में। क्लियर? फाइनली इलास्टिक में प्राइस के साथ टी का रिलेशन इनवर्स, इनइलास्टिक में प्राइस के साथ टी का रिलेशन पॉजिटिव, ईडी इक्वल 1, यूनिटरी में प्राइस डज नॉट अफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो ये जो सिचुएशन आया ना, ये सिचुएशन तुम ओवरऑल एक डायग्राम में भी दिखा सकते हो। मतलब प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर का, मतलब इधर मैं लिख देता हूँ प्राइस, इधर हो जाएगा टोटल व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? और फिर इससे तुम्हारा रिलेशन ये निकल के आएगा। क्लियर? मतलब इधर क्या दिखाया मैंने, प्राइस, प्राइस। क्लियर? मतलब वाई एक्सिस में प्राइस, एक्स एक्सिस में टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अभी इस सिचुएशन में तुम ये चीज़ बना सकते हो, दिस दिस दिस। ओके, सो इन दैट सिचुएशन तुम एक चीज़ देखो, दिस दिस दिस। ओके, ये हो गया ना, ये हो गया। ठीक है? अभी इसमें एक चीज देखो, इधर तो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, इधर प्राइस। मतलब इस कर्व में जितना तुम ऊपर ऐसे जाओगे ना, तो जितना तुम अपवर्ड स्लोप में जाओगे, अपवर्ड मूवमेंट में जाओगे, उतना प्राइस भी बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा।
प्राइस भी बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब इस पॉइंट में प्राइस जितना होगा टोटल एक्सपेंडिचर जितना होगा, इस पॉइंट में प्राइस भी बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इस पॉइंट में प्राइस भी बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। मतलब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन हो गया पॉजिटिव, और टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव तुमको कौन सा कॉन्सेप्ट में मिला, इनइलास्टिक डिमांड में मिला। क्लियर, मतलब ये जो सिचुएशन तुमको मिला ना ए टू बी तक, इसमें ई डी लेस देन 1 होगा, बिकॉज प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन पॉजिटिव। ये जो बी टू सी सिचुएशन है ना, बी टू सी, इसमें देखो इस पॉइंट में प्राइस इतना, इस पॉइंट में प्राइस इतना, इस पॉइंट में प्राइस इतना, मतलब इस एरिया में प्राइस का चेंज हो सकता है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, बट ईच एंड एवरी पॉइंट में टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कितना, सेम। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, इस पॉइंट में टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, लेकिन प्राइस इधर देखो बढ़ेगा या घटेगा। मतलब ये सिचुएशन में प्राइस ने टोटल एक्सपेंडिचर को कोई इफेक्ट नहीं गिराया, मतलब ये सिचुएशन में ई डी ऑलवेज 1 होगा। क्लियर, अब ये वाला सिचुएशन में जाओ, अगर तुम सी टू डी पॉइंट तक अगर मूव करोगे ना ऐसे, तो इस पॉइंट में तुम ऊपर जितना जाओगे प्राइस बढ़ेगा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, घटेगा। इसे देखो, टोटल एक्सपेंडिचर घटते जाएगा, लेकिन प्राइस तो बढ़ते जाएगा, है ना, प्राइस बढ़ते जाएगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, और प्राइस अगर बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर अगर घटेगा ना, तो ये रिलेशन आता है इलास्टिक डिमांड में। मतलब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन इनवर्स, और अगर इनवर्स तो ये सिचुएशन में ई डी ग्रेटर देन 1। क्लियर, सो फाइनली इस सिचुएशन में प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन इनवर्स एंड इट इज ऑलवेज ओकर इन इलास्टिक डिमांड, एंड इन दैट सिचुएशन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन नहीं है, मतलब प्राइस ने टोटल एक्सपेंडिचर का कोई इफेक्ट नहीं गिराया, तो वो होता है इडिकल 1, मतलब यूनिटी इलास्टिक में। क्लियर, लेकिन ये वाला सिचुएशन में प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन आ रहा है क्या, पॉजिटिव। क्लियर, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये कॉन्सेप्ट तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इन इलास्टिक डिमांड में था, मतलब ई डी लेस देन 1 में था। क्लियर, सो फाइनली दिस सिचुएशन रिलेटेड टू इन इलास्टिक डिमांड where price and total expenditure are positively related, but in that situation it is unity elastic where price does not affect total expenditure. Clear, but in that situation what, elastic demand where price and total expenditure are inversely related. Okay, so these are the whole concept related to what, total expenditure and elasticities of demand, मतलब elasticities of demand के साथ total expenditure का relation, and it is always associated with 3 types of elasticity. One is elastic demand, second one inelastic demand, third one unitary elastic. Okay, so आज हम ये concept बुझिलो। Okay, thank you.